Today I would love to introduce you to a guest on set جو کہ ہم سے basically breast cancer کے بارے میں بات کریں گی right but before we actually introduce the guest I want to tell you کہ پاکستان جو ہے وہ highest incident of breast cancer in Asia رکھتا ہے. اس کے estimated each year more than 83,000 cases ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. nearly 40,000 عورتیں یعنی کہ 40,000 عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے because of this disease. ٹھیک ہے, پاکستان میں 9 عورتوں میں سے ایک عورت کو ایٹ لیسٹ بریسٹ کینسر ضرور ہوتا ہے اینڈ 77% عورتیں جو ہے وہ ابو دی ایج آف 50 ہوتی ہیں یعنی کہ 50 سال سے زیادہ عمر کی ہوتی ہیں. یہ سب سے زیادہ کامن کینسر ہے پاکستان میں اور ہر ایج اور ہر مطلب میل یا فیمیل دونوں کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کوارٹر آف کینسر کیسز ہیں بریسٹ کینسر کے پاکستان کے اندر. اس کی 2.5% ہائر پرسنٹیج ہے اگر آپ نیبرنگ کنٹریز میں دیکھیں. اور ہم اس کے اوپر آج اویئرنیس کرنے کے لیے ڈاکٹر کوثر رحمان کو انٹروڈیوس کرائیں گے جو کہ ایک بریسٹ آنکوپلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجن ایٹ التمش جنرل ہاسپٹل ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر کوثر, ہاؤ آر یو؟ گریٹ. سو ڈاکٹر کوثر, آج ہم آپ سے بیسکلی اسپیسیفکلی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بریسٹ کینسر ہوتا ہے. دیکھیے, بریسٹ کینسر کی پریزنٹیشن ہوتی ہے بریسٹ میں لمپ ہو سکتا ہے, آرمپٹ میں لمپ ہو سکتا ہے, بلڈی نپل ڈسچارج, ایگزما ٹائپ پریزنٹیشن ہو سکتی ہے, نپل السریشن ہو سکتی ہے, اسکن فکس ہو سکتی ہے, ریڈنیس ہو سکتی ہے یا پین ان بریسٹ ہو سکتا ہے. ان میں سے کوئی بھی پریزنٹیشن ہو تو بریسٹ کینسر ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی انلیس پروون ادروائز, جب تک انویسٹیگیٹ نہ ہوا. ٹھیک ہے, اینڈ کون سے ارلی سائنز ہیں, ہاؤ کین وی ٹیل دیٹ somebody has breast cancer or is developing it? This is what I say. You should be breast aware one. دوسرا, کوئی بھی مائنر چینج بریسٹ میں ہو, آپ کو لگ رہا ہے کہ اسکن کلر چینج ہوا ہے, ریڈنیس فیل ہو رہی ہے, ایون اف اے پی سائز لمپ یو فیل ان دا بریسٹ, اس کو دکھانا چاہیے, ایویلویٹ کرانا چاہیے. آرمپٹ میں کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ لمپ جیسا یا کچھ فیل ہو رہا ہے, اس کو دکھانا چاہیے. Anything abnormal in breast, you should consult a breast surgeon. That's surprising. I've never heard of that before, Dr. Kothar. Like armpit کے اندر اگر لمپ ہو, کیونکہ ہمارے کیا ہوتے ہیں, آرمپٹ میں نارمل گلینڈس ہوتے ہیں. اگر کینسر ہو تو وہ ان کو اسپریڈ کر سکتا ہے اور وہ ہمیں فیل ہوتے ہیں. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اگر بریسٹ میں بھی لمپ فیل ہو رہا ہے, آرمپٹ میں بھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ اسٹیج میں آلریڈی, یعنی بریسٹ جو ہے وہ آرمپٹ کے گلینڈس کو پہنچ چکا ہے. ہمیں اسٹیج تک تو اس کو لے جانا ہی نہیں چاہیے. لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بریسٹ میں کچھ بھی فیل نہیں ہوتا اور لمپ صرف آرمپٹ میں ہوتا ہے, اس لیے اگنور نہیں کرنا چاہیے دونوں کو. بالکل. Oh my God, اچھا, I didn't know about this armpit thing کہ basically this happens later, کہ وہ armpit میں بعد میں جاتا ہے. Alright, great. So how can women perform a self exam? یہ میں آن لائن بھی دیکھتی ہوں and I'm very impressed to see that women have come with very creative ways to explain. This is really important. Yeah. جب ہم لوگ اویئرنیس سیشنز میں بھی جاتے ہیں یا پھر ٹی وی شو پہ بھی, یا جب کوئی جاننا بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بات کس پہ ہوتی ہے, ہمیشہ کازز رسک فیکٹر. تو میں یہ کہتی ہوں کہ کازز اور رسک فیکٹر پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا, لیکن آپ سیلف اویئر ہوں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سیلف ایگزامینیشن. نو سائنس ان اٹ. آپ نے بھی گوگل کیا ہوگا, دیکھا ہوگا, لے ڈاؤن, سٹ اینڈ لک ایٹ یور سیلف ان دا مرر. چھوڑ دیں سب کچھ نہ کریں. ویری سمپل پوائنٹ, یا جو میں کہتی ہوں ویمنس فنڈا ایگزامینیشن, سیلف ایگزامینیشن کا, یو ٹیک شاور ایوری ڈے. یس. ٹھیک ہے, یو اسکرب یور باڈی ایوری ڈے. جسٹ ایگزامن یور بریسٹ. Your left breast with your right hand, left with your right hand, and right with your left hand. Just examine the whole breast. You just don't have to poke the tip of your finger in. You just have to feel your breast and armpit. That's it. Very simple thing. آپ پلان کر کے کچھ کرنا نہیں ہے. پلان جب آپ کرتے ہو تو بولتے ہو آج یا کل یا پرسوں, you decide. Of course. But that's a very simple thing. You are taking shower, just examine yourself. سو ڈاکٹر کوثر, ہمیں اکثر یہ سوال آتا ہے اپنے آڈینس سے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو بریسٹ کینسر ہے تو ڈز دیٹ مین دیٹ یو ہیو این ایکول چانس آف ہیونگ اٹ؟ یس. سو یو آر ایٹ ہائی رسک, اسپیشلی اگر فیملی میں کوئی ینگ ایج میں بریسٹ کینسر ہو, یعنی لیس دین 40 ایئر میں کسی کو بریسٹ یا اوویرین کینسر تھا, تو پھر یو آر ایٹ ہائی رسک. اگر جیسے یور مدر اور یور آنٹ اور یور فار ریلیٹیو شی ہیڈ بریسٹ کینسر ایٹ ایج 50, تو اس میں تو ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتا ہے. یو آر ایٹ رسک بٹ ناٹ ایٹ ہائی رسک. لیکن ینگ ایج کینسر میں جینیٹک ٹیسٹنگ ضرور کرانی چاہیے. اچھا, اور آج کل جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ فری میموگرامز بھی دیے جا رہے ہیں, which is amazing. A lot of hospitals are doing it, a lot of doctors are doing it.
आर दे रियली इफेक्टिव? और औरतें क्यों घबराती हैं काफ़ी दफ़ा मेमोग्राम कराने से? क्या ये कोई स्केरी प्रोसीजर होता है? मैमोग्राम स्कैरी प्रोसीजर नहीं होता, ब्रेस्ट का एक्सरे है। अगर एक बार एक औरत ने कराया तो उसको डर लगता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट को कंप्रेस करके उसका एक्सरे लिया जाता है। स्क्रीनिंग मैमोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो कह रही हो डिस्काउंट्स या फिर फ्री में है, क्योंकि last first lady Mrs. Samina Alvi was really interested in awareness programs of breast cancer. तो फिर उन्होंने बहुत हॉस्पिटल्स में हर जगह काफ़ी काम किया अवेयरनेस पे। तो हॉस्पिटल्स भी अब ये करते हैं कि काफ़ी साल हो गए इसको कि डिस्काउंट्स देते हैं। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग अगर हो, यानी आपके ब्रेस्ट में कोई लंप है या नहीं, इफ़ यू आर क्लोज टू एज 50 आपको मैमोग्राम कराना चाहिए। उसमें क्या होता है कि अभी आपको लंप बना नहीं है ब्रेस्ट में, जो अर्ली चेंजेस है ना, दे आर पिक्ड अप बाय मैमोग्राम। और फिर जो बाहर हम लोग कह रहे हैं ना कि अर्ली डिटेक्शन हो रही है, वो इसी तरह से अर्ली डिटेक्शन होती है कि अभी ब्रेस्ट कैंसर का लंप आपको फील भी नहीं हुआ, चेंजेस स्टार्ट हुए, मैमोग्राम पिक करता है और फिर उसको हम निकाल देते हैं। अच्छा, ओके, गॉट इट। ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अगर ब्रेस्ट कैंसर हम लोग अनट्रीटेड छोड़ दें तो कितना टाइम हम सर्वाइव कर सकते हैं इस चीज़ के साथ? मतलब इज स्टेज 2 कंसिडर्ड टू बी स्टिल क्योरेबल? आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटेबल है। ओके, अगर टाइमली डायग्नोज हो तो वो औरत वही नॉर्मल लाइफ स्पैन गुजारती है जो कि मैं और आप या हम में से कोई भी गुजार सकता है। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स आर वेरी वेल बिहेविंग, यानी कि आप करो तो फिर रिकरेंस भी बहुत मुश्किल है कि कभी हो, प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, तो फिर आप डिजीज़ को क्यों छोड़ते हैं? देखिए, कैंसर खामोश नहीं बैठता, कैंसर हैज़ टू शो इटसेल्फ, तो फिर वो बॉडी में स्प्रेड करता है, आपके लिवर, लंग, ब्रेन कहीं पे भी जा सकता है, तो फिर उसको ट्रीट कराएं। पेशेंट आते हैं हमारे पास, स्टेज 3 में भी आते हैं, स्टेज 4 में भी आते हैं, ट्रीट भी कराते हैं लेटर ऑन, लेकिन फिर शुरू में क्यों ना कराएं, जब आप ट्रीट भी हो सकते हो और फिर आपकी प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, ओके, गॉट इट। एंड थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिफरेंसेस कैन वी मेक? हाँ, आजकल मैं जिम जा रही हूँ, ज़बरदस्त, मेरा भी वेट गेन हुआ था दरमियान में ज़्यादा। तो जो आप इन्फर्नो बर्न या जो क्लासेस ले रहे होते हैं उसमें आपको हैवी वेट लिफ्टिंग कराते हैं, आपको भगाते हैं, आपको जंप लगाते हैं। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि ये वो जो प्रिमिटिव हमारा लाइफस्टाइल था ना, जिसमें आप जो है वो हैवी वेट भी कैरी करते थे, पैदल चलते थे, अब आप ट्रेडमिल पे चढ़ते हो, ये सारे काम करते थे तो आप फिट रहते थे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अब हमारी जो आजकल के लाइफस्टाइल है उसमें नहीं है। हम घर से उतरते ही गाड़ी में बैठ जाते हैं, हम वॉक नहीं करते हैं, हम साइकिलिंग नहीं करते हैं, खाना क्या है हम ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल, हमें पिज्ज़ा चाहिए होता है, हमें बर्गर चाहिए होता है। हमारे बच्चों का क्या था, पहले वो जाके मैदान में खेलते थे, पार्क्स में खेलते थे, अब क्या है वो अपार्टमेंट्स में बंद हो गए हैं। तो ये सारा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना होगा। आपको अपने बच्चों को शुरू से ही एक्टिविटीज़ की आदत डालनी होगी। तो जो रिसर्च कहती है कि स्कूल में जो टीन एज में लड़कियां अगर वो स्पोर्टी हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में है, उनका विटामिन डी नॉर्मल है और वो ओबेसिटी का शिकार नहीं है, तो उनमें जो जिस एज में ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम जो कह रहे हैं ना कि इंसिडेंस बढ़ गया है, तो इसी वजह से तो बन गया है कि हमारा लाइफस्टाइल ही डिफरेंट हुआ है। तो वी हैव टू वर्क ऑन इट। बेसिकली मूवमेंट रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे बेसिकली पूछना चाह रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि व्हाट इज़ कैंसर रजिस्ट्री और उसके क्या यूजेस हैं? देखिए, इस पे हर बार ये क्वेश्चन होता है और हम लोगों से जब कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान, हम ये कहते हैं वी डोंट हैव कैंसर रजिस्ट्री, ब्रेस्ट कैंसर रजिस्ट्री। हमारा प्राइवेट सेक्टर भी चल रहा होता है, गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह पे हम कैंसर को डील कर रहे होते हैं। ये हर यानी एक मुल्क के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसकी अपनी एक ब्रेस्ट कैंसर रजिस्ट्री हो या कोई भी कैंसर रजिस्ट्री हो जिसमें उनको पता चले कि कैंसर का इंसिडेंस कितना है। बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों का ये था कि हम कहते थे पाकिस्तान की हमारी ब्रेस्ट कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, बट फॉर्चुनेटली आई हैव हर्ड दैट आसिफा भुट्टो इज़ इंटरेस्टेड एंड वो बिल भी पास कर रही हैं या कर चुकी हैं कि अब ब्रेस्ट कैंसर रजिस्ट्री होएगी और उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि कितना इंसिडेंस है एक्चुअली पाकिस्तान में और हम लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो कितना फ़ायदेमंद है
और ये डेटा किस तरीके से हेल्प करेगा एक्चुअली? देखिए, डेटा जो कलेक्शन होती है ना वो 3 तरह से होती है। उसमें होता है पॉपुलेशन बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड एंड फैमिली बेस्ड। फैमिली बेस्ड में ये होता है कि जिनमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है कैंसर की, वो कितने रजिस्टर करते हैं, और फिर उनकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है, और फिर उसमें फिर अलग बिल्कुल वो होता है ना कि प्रिवेंशन में हम उनकी एंजेलिना जूली का जैसे आपने सुना था कि उन्होंने मेस्टेक्टमी सर्जरी कैंसर से पहले ही करा ली थी, इस तरह होता है। और फिर पॉपुलेशन बेस्ड में कि आप पूरे कंट्री को चेक करते हो कि कहाँ पे कैंसर इंसिडेंस कितना है, या फिर हॉस्पिटल्स का फिर हम लोग ऑडिट पूरा निकालते हैं। फ़ायदा उससे हमें ये होता है कि हम यूज़ेस क्या होते हैं इसके, उसके फ़ायदा हमें ये होता है कि हम रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च में हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, उसमें हम लोग जो हमारे यूटिलाइज रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। एंड आई थिंक डॉक्टर कौसरी ये कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप देखो तो मैं जब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी तो हम लोग डेटा बाहर के मुल्क का उठा के उसकी रिसर्च के ऊपर प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे होते थे, जो कि गलत है। पाकिस्तान का डेटा खास पाकिस्तानी औरतों के लिए होना चाहिए। इट्स लाइक स्किन केयर, राइट? आप कोरियन स्किन केयर आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया। मैं एक मिली थी एक सेमिनार में, हमारी डॉक्टर है जो कि PhD कर रही है नॉटिंघम से ब्रेस्ट कैंसर में। तो वो ये कह रही थी, हम दोनों का डिस्कशन यही था कि हम लोग यंग एज ब्रेस्ट कैंसर्स देख रहे हैं, इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो वो भी यही कह रही थी कि लोग हम लोग डेटा वेस्ट के डेटा पे काम कर रहे होते हैं, हमारी तरफ नहीं है। वी हैव टू डिटेक्ट एंड चेक दैट जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर इन आवर वुमेन। हैव वी फिगर्ड दैट आउट? We are working on it. We are working on it. आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? I mean, research is something मुझे बहुत पसंद है। देखो, रिसर्च का कभी हम ये नहीं कह सकते कि कितना टाइम लगेगा। हाँ, अगर हम लोग अब अपना एक ऑडिट रखते हैं, अपनी एक कैंसर रजिस्ट्री रखते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं, हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तो हैं, आगा खान भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, हमारे लोग बाहर भी कर रहे होते हैं, तो उससे इंशाल्लाह वी विल कम अप विद समथिंग। इंशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। नो, आपको पता है 109 women die every 24 hours due to breast cancer in Pakistan। 40,000 डेथ्स होती हैं every year और नए केसेस ऑलमोस्ट 90,000 होते हैं। तो यू नो, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? आपको लग रहा है यू नो आपका माशाल्लाह 14-15 साल का एक्सपीरियंस अब हो गया है डॉक्टर कौकब, आप देखती हो, आप मुझे जिस अभी कमर्शियल ब्रेक में बता रही थी कि औरतें ज़्यादा घबरा रही होती हैं आते हुए, उनको शायद घर के मर्द बोल रहे होते हैं कि चलो, पर वो घबरा रही होती हैं। तो अभी भी ये औरतों को किस चीज़ का डर होता है कि क्या हो जाएगा ऐसा? जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कभी, तो सब कहते हैं कि शायद स्टिग्मा है या क्या है, या women they don't want to discuss। मेरे पास हर कम्युनिटी से या हर एरिया से, इंटीरियर से भी आती हैं पेशेंट्स, हमारी कराची की भी आती हैं। मुझे ये लगता है कि सबका एक ही फियर है कि हम गए तो कहीं डॉक्टर हमें ये ना है कहे कि ये कैंसर है, और जिससे भी कहो ना कि बोलेगी 1 महीना पहले था या 1 साल पहले था या इतने महीने पहले। एक क्वेश्चन मैं उसको बोलती हूँ, क्यों नहीं आई? जब फील किया था क्यों नहीं आई उस टाइम दिखाने? आई गिव टाइम टू माय पेशेंट्स एंड आई स्पीक टू देम एंड दे बिकम लाइक फैमिली। काउंसलिंग भी होता है। तो फिर वो कहती कि मुझे डर था इस बात का। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि देखो, अगर टाइमली डायग्नोज हो तो टाइमली ट्रीटमेंट हो सकती है, अगर कैंसर नहीं हो तो तुम रिलैक्स हो जाती हो। लोग समझते हैं कि फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि मर्द जो है वो चाहे हस्बैंड हो, फादर हो, बेटा हो, वो डिपेंडेंट होता है अपनी घर की औरतों पे। एक औरत, आपने आई डोंट नो देखा है नहीं देखा अराउंड, अगर एक औरत डिवोर्स्ड हो जाती है या उसके शौहर की डेथ होती है, वो सरवाइव कर लेती है। मर्द के लिए बहुत मुश्किल होता है। और मैंने फैमिलीज़ को डिस्टर्ब होते हुए देखा है कि जब उनकी फैमिली की जो औरत की डेथ होती है बिकॉज ऑफ कैंसर और एनी अदर रीज़न, बेटा डिस्टर्ब हो जाता है, बाप डिस्टर्ब हो जाता है, शौहर डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। तो वो लोग ज़रूर चाहते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट हो। मेरा मैसेज यही है सारी औरतों को, ये जो मॉर्निंग शोज़ देखते हैं या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम सुनते हैं या रिंगटोन सुनते हैं कि छाती का कैंसर, वो कहते हैं ये इतना डरावना है, मुझे तो डर लग गया इसको सुनते। ये डरावना नहीं, आपको बताने के लिए है कि ये काबिल इलाज बीमारी है। तो फिर, और आप डॉक्टर्स भी हैं हर हॉस्पिटल में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आपकी ट्रीटमेंट के लिए ब्रेस्ट सर्जन्स ट्रेंड हैं। एंड ट्रीटमेंट से ही बल्कि आपके लिए अगला सवाल है कि आप थोड़े से हमें ट्रीटमेंट्स बता देंगे बिफोर वी एंड दिस सेगमेंट। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? टिल व्हाट स्टेज कैन वी अवेल दैट ट्रीटमेंट? स्टेज 1, स्टेज 2, इज स्टेज 4 रियली वाटर अंडर द ब्रिज या कैन वी स्टिल क्योर इट?
ब्रेस्ट लम्प हो हम एग्जामिन करते हैं, फर्स्ट स्टेप ये है। ओके। दूसरा ये कि उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है, अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है कि अगर हमें लगे दिस इज सस्पिशियस या अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम पे लगे कि इट्स अ सस्पिशियस लम्प, तो हम उसकी बायोप्सी कराते हैं। ठीक है। बायोप्सी के बाद जब डायग्नोज हो के कैंसर है तो फिर मेटास्टैटिक वर्कअप के बाद हम सर्जरी करते हैं। अच्छा। अगर स्टेज 1-2 है तो पहले सर्जरी होती है। सर्जरी में जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ओंकोप्लास्टी में क्या होता है कि आप ब्रेस्ट बचा सकते हो। अच्छा। और ब्रेस्ट की शेप भी वही रहती है और अगली स्कार्स भी नहीं पेशेंट को मिलते, तो फिर ब्रेस्ट रिमूवल का जो एक खौफ है औरत को वो भी नहीं होता, ब्रेस्ट बच सकता है। लेकिन अगर स्टेज 3 हो तो पहले हमें कीमोथेरेपी देनी होती है, फिर सर्जरी करनी होती है। नहीं, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेबल, बट दैट्स आल्सो ट्रीटेबल। उसमें पहले कीमो फिर सर्जरी, ताकि ट्यूमर श्रिंक हो और ट्यूमर का रिस्पॉन्स का भी पता चलता है। अच्छा, कुछ कैंसर्स ऐसे अगर स्टेज 1 में हमने पेशेंट को डायग्नोज किया या DCIS में, तो इफ़ इट्स अ वेल बिहेविंग ट्यूमर और उसमें जीन टेस्टिंग भी हम करवा सकते हैं, तो फिर कभी पेशेंट को कीमो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। लेकिन अगर हम ब्रेस्ट बचाते हैं और रिमूव नहीं करते तो फिर रेडिएशन की पेशेंट को ज़रूरत होती है। Oh wow, I mean, so basically these are some of the ways in which we can treat breast cancer. But in every stage आप मुझे और वो गुजर जाता है और वो पेशेंट जब इस फेज से निकल जाता है तो सब कुछ भूल भी जाता है और फिर वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। And last message अगर मैं आपसे लूँ of faith and love and hope, women go back to their normal lives? They do. And I mean मतलब continue living and you know वही exercise routines शुरू कर सकती हैं। You know what I've done? I've started contacting my patients. Yeah. जैसे हम लोग ट्रेनिंग में एक अलग पीरियड होता है, पेशेंट होते हैं, हम प्रोफेसर के अंडर काम कर रहे होते हैं, उस टाइम भी आप सर्जरी करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंटली मैंने जो काम करना शुरू किया है आज से 14 साल या 15 साल पहले से, मैं अपने उन पेशेंट्स को कांटेक्ट कर रही हूँ, द वंस यू नो हु आर रेडी टू स्पीक। मैंने उनको बोला कि एक शॉर्ट क्लिप मुझे वीडियो की बना के भेजें कि जब आपकी डायग्नोसिस हुई थी आपकी क्या फीलिंग थी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और अब आप क्या फील करती हो। आपने मुझे 3 लाइनों में ये वीडियो क्लिप बना के भेजनी है। मैं चाह रही हूँ कि वो द वंस हु आर रेडी, ज़ाहिर हर कोई बात नहीं करना चाहता, तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये एक मैसेज मैं लोगों के लिए भेजूँ थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि औरतों को पता चले कि देखो ये भी हमारी जैसी है, डायग्नोज भी हुई है, ट्रीट भी हुई है और माशाल्लाह से इतने साल से नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। बिल्कुल। तो उससे फ़र्क पड़ेगा, मेरा ये ख्याल है। ये आइडिया भी इस अक्टूबर में मुझे आया। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया और अगली दफ़ा ये आप सितंबर से इस पे काम शुरू कर दीजिएगा मेरे ख्याल से बिकॉज आई थिंक अक्टूबर में हम लोग भी पूरा महीना वी शेयर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड पॉजिटिव फाइटर वुमेन जिन लोगों ने एक्चुअली इस डिजीज़ से ना तो सिर्फ लड़ाई की है, लाइक आई सेड, अभी हम मेरी दोस्त की भी बात कर रहे थे जो आपकी भी पेशेंट रह चुकी हैं, कि ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है। आपको बस हिम्मत रखनी होती है एंड इट्स नॉट दैट यू नो स्केरी एनीमोर। उसमें कई चीज़ें लोगों के लिए स्केरी होती है, कई चीज़ों से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन सब सेटल हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कौसर फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत ही रॉ एंड ओपन तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, अवेयरनेस भी बताई, ऑप्शंस भी बताए। वी रियली अप्रिशिएट।